हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको अ टाइगर इन द ज़ू एक्सप्लेन करूँगी। सो दिस इज़ द पोम ऑफ क्लास 10th। तो इस इस पोम का ये इंट्रोडक्शन है कि द पोम gives us a sharp contrast of a tiger. The poem provides a contrast in the mood and environment of a tiger when he is in the zoo, uh, and when he is in the forest, when it is in its natural habitat, and when it is imprisoned. So the central idea of the poem is that the poem A Tiger in the Zoo is written by Leslie Norris. So in this poem the poet tries to depict the mental condition of a caged tiger, and he compares the life of a tiger in the zoo with its life in its natural habitat. The poet conveys an important message that the wild animals should be left in their natural habitat. In the poem, he heightens the contrast between freedom and captivity. So let us go through the first stanza. What is the first stanza? He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. Here the meaning of stalks is to move quietly and slowly in a threatening way. Okay, the meaning of vivid is bright or clear. Stripes means long narrow bands. Pad means the soft part under the foot of the tiger. Rage means anger, gussa. Okay, so what is the explanation? The explanation is that the tiger in the zoo walks in the limited space provided to it in a concrete cell in the zoo. So basically tiger केज में है, ओके, और उसे एकदम चलने के लिए उसे एकदम लिमिटेड स्पेस मिली हुई है, ठीक है। उसका वो ऐसे मतलब जंगल में रहता है तो वो खुले पूरी खुली तरह के से वॉक कर सकता है, पर वो केज में है तो वो उसे थोड़ी स्पेस मिलती है चलने के लिए। सो it takes a few steps. There are stripes on its body and are quite prominent. Its paws are soft like velvet. No noise is produced when it walks on its pads of velvet. The tiger is in rage, मतलब टाइगर बहुत गुस्से में है, but silent because he finds himself helpless in the locked cell. Okay, so the टाइगर जो है वो गुस्से में है, पर वो शांत रहता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मैं बहुत हेल्पलेस हूँ और मैं मतलब वो हेल्पलेस है इस बंद हुए केज में। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट सेकेंड स्टेंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर द प्लम्प डियर पास। सो इसके मीनिंग जान लेते हैं स्टेंजा में। लर्किंग मीन्स हाइडिंग, sliding means moving, hole means pool, plump means chubby. So the explanation is that the poet suggests that the cage is not the proper place for the tiger. It is not its natural habitat. He should have been sitting under long grass near a stream. As soon as he would see his prey, like the deer coming, he would slide silently, means he would move silently through the grass and kill them. The poet wants to convey that the tiger should be there in the forest in its natural habitat, not in a concrete cell cage. ठीक है, तो पोएट ये बताते हैं कि टाइगर की असली जगह उसके नेचुरल हैबिटेट में है, फॉरेस्ट में है, ना कि उस कंक्रीट सेल यानी उसके केज में। ठीक है, पोएट ने यहाँ पे ये भी बताया कि वो ग्रास के पीछे छुप जाएगा और वो अपने जो शिकार करना चाहता है डियर का, वो उसका इंतज़ार करेगा डियर का, फिर वो मूव करेगा साइलेंटली, वो मूव करेगा और डियर को खा जाएगा। ठीक है, now the third stanza is he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. ठीक है, अब इसके मीनिंग जान लेते हैं इस स्टेंजा में क्या मीनिंग है। स्नार्लिंग मीन्स टू मेक एन एंग्री और अ वार्निंग साउंड। ठीक है,
गुस्से से कोई आवाज़ निकालना, एंड वार्निंग साउंड. बैरिंग मीन्स शोइंग. बैरिंग मीन्स शोइंग, दिखाना. फैंग्स मीन्स टू शार्प टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, या कुछ एनिमल्स के आगे जो टीथ रहते हैं ना, उनकी बात की जा रही है. द मीनिंग ऑफ टेरराइजिंग मीन्स फ्रेटनिंग और थ्रेटनिंग टू क्रिएट फियर. ठीक है. Now we will go with the explanation. The explanation is this ki the poet then gives another suggestion that the tiger should be sitting at the jungle's edge in close vicinity of a village. He should be terrorizing the people passing that way by showing its sharp teeth, okay, baring its claws and producing low sound of anger. ठीक है. Now the fourth stanza, but he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. So यहाँ पे मीनिंग जान लेते हैं फोर्थ स्टैंजा में. कंक्रीट सेल मीन्स अ वेरी स्मॉल एंड अनप्लीजेंट केज, बहुत छोटा केज. ठीक है, सीमेंट से बना हुआ केज है, बहुत छोटा केज है. स्टॉकिंग मीन्स मूविंग स्लोली एंड क्वाइटली इन अ थ्रेटनिंग वे. पहले भी मैंने मतलब ऊपर बताया हुआ है इसका मीनिंग. तो एक्सप्लेनेशन ये कि द पोएट नाउ शोज डीप सिंपैथी एट द प्लाइट मीन्स अनप्लीजेंट सिचुएशन ऑफ द टाइगर दैट इज़ इम्प्रिजन्ड इन अ सेल मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट, यानी सीमेंट से बना हुआ है उसका केज. ही कैन नॉट कम आउट ऑफ द सेल बिकॉज स्ट्रॉन्ग बार्स आर फिक्स्ड. ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ है सारी वो बार्स के पीछे छुपी हुई है, वो अंदर मतलब वो निकाल नहीं सकता अपना एंगर. ठीक है. सो thus the poet says that the tiger's strength is locked behind the bars. He shows no interest in looking at the visitors, rather he keeps on stalking in the limited space of the cage. ठीक है. और जो विजिटर्स उसको देखने आ रहे हैं, कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि टाइगर को आप केज से आप बाहर निकालिए, इसकी भी कोई लाइफ है ना, फ्रीडम होता है हर एक इंसान का, हर एक लिविंग बीइंग का. कोई सपोर्ट नहीं कर रहा टाइगर को, सब उसको देखने आ रहे हैं, सब उसके साथ सेल्फी खींच रहे हैं ना. तो टाइगर विजिटर्स को भी इग्नोर कर देता है और वो लिमिटेड स्पेस में स्टॉकिंग करता रहता है, यानी चलता रहता है. वो भी थोड़े से स्पेस में, उसको सिर्फ 2-3 कदम ही उसको चलने को मिलते हैं केज में. केज बड़ा छोटा होता है. नाउ द फिफ्थ स्टैंजा एंड द लास्ट स्टैंजा. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. So meaning of patrolling means to go around an area at regular times to check that is it safe or not. ठीक है. Brilliant means very bright. So due to the visitors, इसका explanation ये है कि due to the visitors the tiger gets no rest during the day. Even at night he remains disturbed due to the noise that comes from the patrolling cars. जो patrolling car से आवाज़ आती है, टाइगर उसे डिस्टर्ब हो जाता है. ओके, पूरे दिन विजिटर्स उसको देखने आते हैं, है ना, और वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसको फिर रेस्ट करने को नहीं मिलता. और रात में भी उसको लोग डिस्टर्ब करते हैं. लोग मतलब पेट्रोलिंग कार्स की जो आवाज़ें हैं. सो द टाइगर हैज़ thus lost all hope and feels very helpless. He thus stares at the brilliant stars shining brightly in the sky. It seems that he is looking for some sort of comfort and hope in these stars. His brilliant eyes show that he still hopes for the day when he would be able to run freely in the forest and live in the natural surroundings. ठीक है. तो काफ़ी अच्छी पोम है लेस्ले नॉरिस की. तो हम ये वापस इसकी पूरी समरी देख लेते हैं. So this poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and again back to the zoo. In the zoo he has no freedom. Okay, he is not free. Okay, he is kept in a cemented cell behind the bars. He feels very angry, frustrated and helpless. This reminds him of his natural habitat, his hiding and sliding
in the long grass near the water hole and pouncing upon the fat deer. The way he terrorized the villagers, displaying his sharp teeth and claws. Now at night in the zoo, he hears the sound of patrolling cars. So the tiger in the zoo appears helpless as a mere showpiece and a source of entertainment to the people. Okay, but no one says that he is also a living being, and उसे भी मतलब आपको फ्रीडम देना चाहिए. सो द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट इट इज़ क्रूअल टू कीप वाइल्ड एनिमल्स इन स्मॉल एनक्लोजर्स ऑफ द जू अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट. पोएट ये कहते हैं कि बहुत ही गलत है कि किसी भी वाइल्ड एनिमल को आप जू में बंद करके नहीं रख सकते, उसको उससे अपने नेचुरल हैबिटेट से दूर नहीं रख सकते. दे फील एंग्री, हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन द केज. एंड टाइगर ऑल्सो पेज नो अटेंशन टू द विजिटर्स who come to watch him. क्यों? क्योंकि वो एक एंटरटेनमेंट का एक सोर्स बना हुआ है, वो एक शो पीस बना हुआ है. बट कोई भी विजिटर आके ये नहीं बोलता है कि टाइगर को हमें जू में नहीं रखना चाहिए, छोटे से केज में बंद करके नहीं रखना चाहिए, बिकॉज वो भी एक लिविंग बीन है ना, उसको भी फ्रीडम चाहिए. ठीक है, अगर आपको कोई एक दिन मैं रूम में बंद कर दूँ, है ना, अकेले, और मैं जिस तरह से चाहूँ उस तरह से आप करो, मतलब रूम में आप बंद रहो, कुछ खाना नहीं दूँ आपको, है ना, और रात में भी वो पेट्रोलिंग कार्स आती हैं तो टाइगर को मतलब डिस्टर्ब करती हैं, तो टाइगर को कोई रेस्ट नहीं मिलता है. ठीक है, सो टाइगर pays no attention to the visitors who come to watch him, and in the silence of the night he stares at the bright brilliant stars with his bright eyes. वो उस उम्मीद के साथ ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है अपनी ब्राइट आइज़ से कि मैं भी एक दिन नेचुरल हैबिटेट में यानी फॉरेस्ट में अच्छे से घूम पाऊँगा, शिकार कर पाऊँगा. वो इस होप के साथ रहता है. ठीक है, सो हम पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं. एलिट्रेशन है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. ठीक है, एलिट्रेशन का मतलब रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन द सेम लाइन. तो ये आप लाइन देख सकते हैं, फर्स्ट स्टेंजा में ही है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. तो दो जगह एस आ रहा है कंटिन्यूसली, एक तो स्टॉक्स में और एक स्ट्राइप्स में. ठीक है, और दूसरे में वेयर इज द सेकेंड, हाँ, फोर्थ स्टेंजा में आपको एलिट्रेशन दिखेगा ये वाली लाइन में. बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल. दो बार सी से साउंड आ रहा है, कंक्रीट सेल. ठीक है, यहाँ पे कंक्रीट सेल दो बार आ रहा है सी से साउंड. ठीक है, इसमें इमेजरी भी यूज़ की गई है. The phrase lurking in a shadow creates a word picture of some danger hovering for animal who has come to drink water. Other such word pictures are sliding through and a plump deer. रिपीटेशन भी है इसमें पोएटिक डिवाइसेस में, इस पोम में. तो रिपीटेशन का मतलब रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स या फ्रेजेस इन द सेम लाइन. ठीक है, मेरे को देखना पड़ेगा किस में रिपीटेशन है. फर्स्ट स्टैंजा में ही है, देखो तो. वेलवेट क्वाइट, और नीचे भी आई थिंक क्वाइट रेज. दोनों में रिपीटेड वर्ड आ रहे हैं, क्वाइट, है ना. तो ठीक है, ये रही हमारी पोम ख़त्म होती है यहीं पे ही. सो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस पोम में तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. ओके, और जल्दी मैं अभी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी MCQs में, जो आपके लिए बहुत ही मददगार है. ठीक है,
So thank you guys for watching the video, and if you like it, so please like and subscribe to my channel. Or if you have any doubts, so please comment. You can comment below and ask me doubt. Okay, thank you.